अगर आई थिंक थोड़ा सा और घना हो वही इतनी टेंशन इतनी टेंशन शक्ल पे क्या हो गया? नथिंग। Take yours and I'll take mine on the right hand side. And you'll find that you take risks. Once to take these words and make them right. So one day you बट वो जो पेस्ट होगा ना उसको पेस्ट नहीं बोलते, हल्दी बोलते हैं। पेस्ट find, and I'll find mine on the right of your side. क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा तेरे को ठंड लग रही है। And I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and I'll find mine on the right of your side. And I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. क्या गलत है? क्या गलत है? नहीं, बताओ ना क्या गलत है? How are you feeling? I have no words. I'm feeling great. मेरे को हाथ दो। चंदो दुत्ते का बाल बालना बोलना पड़ा मेरे को, हाथ जोड़े। दुत्ते का बाल बालना धर्म दिमाग। लग रहा है आप उसकी पूजा कर रहे हो। उठा दे चल। And I'll find mine on the right of your side. And I'll find बहुत भूख लगी। मैं सुबह से वेट कर रही। if I throw away my fear and pride to set things right. And I'll find mine on the right of your side. Hello, 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 hello. दोबारा Hi, what's up? Sound 1, 2, 3. Check, check. What do you want me to say? अच्छा, so सिद्धार्थ एंड साक्षी के बारे में what is the funniest memory that you have? There are many funny memories that I have of them. Funny? नहीं यार, वो एम्बैरस हो जाएंगे। मैं फ़नी मेमोरीज नहीं बोलूँगी, बहुत ही फ़नी मेमोरीज हैं उनकी। नहीं, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाएंगे, तेरे को अलग से बताऊँगी, कैमरे में नहीं बोलूँगी। बोलो। अरे नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा फ़नी है वो, मतलब मैं नहीं बोल सकती। बोलूँगी अलग से, फ़नी नहीं। आई टेल यू what is that I love about them as a couple and what makes them the perfect people. I know these answers and I know it will be good in the video, so sorry. तो मैं राइटर भी हूँ और मैं डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं सब करूँगी अभी, ठीक है? ओके, सो बट मेरे लिए ना सिद्धार्थ भी एंड साक्षी दीदी, बोथ ऑफ देम, एक तो मैंने इन दोनों को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, आज तक कभी लाइफ में लड़ते हुए नहीं देखा। चिड़चिड़ कर लेंगे शायद, लेकिन लड़ेंगे। इट गेट्स सो इरिटेटिंग यार, कैसे तुम हर रात पूरी रात बात कर सकते हो? लाइक you've known each other for past 14 years, but how can you talk the entire night every day? अगर ये साथ नहीं होते हैं तो ये फ़ोन पे बात कर रहे होते हो, और अगर ये फ़ोन पे बात नहीं कर रहे होते तो ये साथ होते हैं।
So either ways they have to be together 24/7. कैसे? एक अहमदाबाद जाएगा तो दूसरा यार कब आ रहा है, 2 दिन बाद, यार बहुत दिन हो गए यार प्लीज़ आ जा, और वो देहरादून आ रहे हैं, तो मतलब इट्स द सेम थिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये कभी अहमदाबाद कभी देहरादून, बट अलग नहीं रहना है. एंड दे गेट जस्ट व्हेन दे आर नॉट अराउंड ईच अदर दे जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड आई गेस. उनको मतलब व्हेन दे आर टुगेदर इट जस्ट सीम्स कंप्लीट. बहुत ज़्यादा मतलब दे फिट like yin and yang. Only thing that I want to say, just be the same that you are, dono ke dono, exactly. The unconditional love that you have for each other, the 100% complete trust जो मैं तो कभी किसी पे नहीं कर सकती शायद, लेकिन जैसे तुम दोनों को इसने बोल दिया तो हो गया. तो वो जो that dynamic that you both have, please keep it the same. You both know that I love you a lot, and seeing you together gives me hope, gives me all the happiness in the world. Just be that. Just be together and just keep that dynamic alive, keep that liveliness. I know कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हो, तुम्हें पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहिए, दोनों आपस में मज़े कर लोगे और तुम्हें कोई दोस्त भी नहीं चाहिए. Don't forget me, I am very important. So दोनों के दोनों just be that. Don't ever lose that shine that you both have together. That's it. Describe Sakshi in one word. Bossy. I'm sorry, but you are. You will definitely. She'll say no to this, that she is not bossy at all. But trust me, she is. मुझे तो वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे बस अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो नहीं हो सकता. मतलब उसके मुंह से निकला तो करना ज़रूरी है. उसकी आँख काफ़ी होती है, बाय द वे. Describe Siddharth in one word. He's like a volcano. He keeps quiet काफ़ी टाइम तक, है ना, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं, कुछ किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. पर जब फटेगा then कोई नहीं बचेगा. कोई नहीं बचेगा कि सिद्धार्थ भैया का गुस्सा फटा तो कोई नहीं बच सकता. That's just one thing that I think. बाकी तो is very sweet. बट हाँ, वन थिंग दैट आई वांट टू से इज अ वॉल्केनो. काफ़ी शांत, बट जब फटते हैं तो कुछ नहीं बचता. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है. ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट. पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है. शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है. नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे. नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे. भैया खराब कर दी मैंने. सॉरी. आलू बड़े करारे तरम नाल आलू बड़े करारे. चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल स्वीटू आजा मारे. आलू बड़े करारे तरम नाल आलू बड़े करारे. चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल स्वीटू आजा मारे. मुंडे पेलेंटी मेरे ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟੀ. ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟੀ. ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟੀ. तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी. पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है. जहर बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है. नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे. नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे. खजमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ. टुटड़े टुटड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने आ. जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ. रुटड़े रुटड़े
सारे नचते ने सारे रल मिल के अज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के अज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे नचते ने सारे कसमानो खाने रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, बनाओ नाव बतिया, अजी बारी है मोरी उमरिया रे, अजी बारी है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी मेरे तो मेमोरी ये है कि जब सिद्धार्थ जो है 11th क्लास में देहरादून में आया था और ये पिट्ठू लेकर के जो दोनों बच्चे जो है, सिद्धार्थ जब पिट्ठू लेके आता था ट्यूशन पढ़ने के लिए तो साक्षी के साथ जाता था। और एक दिन जो है साक्षी सो रही थी, मैं वहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ लैंडलॉर्ड को, अपने भी फ़ोन कर रहा हूँ, साक्षी उठी नहीं और सिद्धार्थ को खिड़की के रास्ते हमने अंदर भेजा। छोटा बच्चा था तो फिर वो एक मेमोरी तो बहुत वो है। सेकेंड मेरी जो इम्पोर्टेंट मेमोरी मेरे लिए लाइफ में रहेगी, मैंने सिड को 2008 में और 9 में देखा था। 2 साल के लिए केवल यहाँ आए थे लोग, तभी देखा था इसको। लेकिन 2016 में जब मेरी लड़की का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद लड़की मेरी न्यूजीलैंड में थी, लेकिन उसका इंडिया में ऑपरेशन हमने कराया था। जब वापस जा रहे थे तो सडनली हमको जो है सिड दिखा दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो जो सीट मैंने देखा था बहुत छोटा सा बच्चा पिट्ठू लेके घूम रहा है, वो इतना लंबा सा दाढ़ी वाला।
तो मुझे लगा तो उसकी, मैं उस सीट को तो नहीं पहचान पाता, लेकिन उसकी मॉम को जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा भाई साहब नमस्कार। अरे मैंने कहा आप वो मैम जो वहाँ गौतम पढ़ाती थी? कि हाँ सर मैं वही हूँ। अरे मैंने कहा कैसे मैम आप? कि भाई साहब ठीक हूँ। कैसे? मैंने कहा कैसे आप कैसे? कि मेरा लड़का जो है जा रहा है इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैंने कहा मेरी भी लड़की जा रही है, मैं तब खड़ा हूँ। मैंने कहा आपका लड़का कहाँ रहता? कि मैं न्यूजीलैंड। अरे वाह, न्यूजीलैंड कहाँ? कि ऑकलैंड में। अरे वाह, मेरी लड़की तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड रहती है और ऑकलैंड रहती है। तो मेरे बगल बगल जा रहा था तो मुझे लगा यार ये तो लंबा चौड़ा सा लड़का जो है और ब्राह्मण लड़का है। भाई हम तो लोगों के अंदर थोड़ा ये भी कास्ट का भी होता है कि ये अपने जात का होना चाहिए, ये होना चाहिए। मगर ब्राह्मण है। मैं काश अगर ये हमारा दामाद बन जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये बात मन में रह गई। मैं इसको किसी बोल नहीं सकता था। एक्चुअली मेरी सोच तो मैं किसी को नहीं बोल सकता। जब इनकी फ़्लाइट उड़ गई, ये चले गए, मैं और मेरी वाइफ जो है वापस आए, तो रास्ते में अपनी वाइफ को मेरठ के पास हम नाश्ता करने का हम निकले तो वाइफ से कहा, मैं यार काश अगर ये है ये हमारा दामाद बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मैं तुरंत जैसे लेडीज़ की आदत होती है रोकती ना, चुप रहो तुम, चुप रहो, वो लोग बात कर लेंगे, अभी क्या बात करनी है आपको? तो मैं चुप हो गया। ये तो चली गई, ये भी इनकी पोस्टिंग रुद्रप्रयाग थी, रुद्रप्रयाग चली गई। नेक्स्ट डे हमारा जब हम वहाँ से सैटरडे को हम शायद दिल्ली से वापस लौटे थे, संडे को ये रुद्रप्रयाग गए। मैं रेस्ट कर रहा था घर पे आराम से, ये मैं अकेले था, मेरा केयर टेकर होते थे। और मैं नेक्स्ट मंडे को जब ऑफिस पहुँचा तो सीट की मॉम का फ़ोन आया कि भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार बनिए और ठीक ठाक। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि शायद ये कुछ बोलेगी, लगता नहीं है कि क्या यही कुछ बोल रहे, पहल कर ले। तो इन्होंने कहा था हम पहले करें, लड़के हम लड़की वाले वो पहल करें तो हम बात बताएंगे। तो कि भाई साहब आपसे कुछ बात करनी है। मैं तुरंत, मेरे पास स्टाफ था जो है 15-20 लोगों का, मैं तो भाग के मैंने कहा मैम सॉरी अब जस्ट कॉलिंग यू। मैं बाहर गया अकेले, मैंने कहा बात को क्या बात करनी है? तो कहा भाई साहब बहुत अच्छा बच्चे पहुंच गए। मैंने कहा बच्चे पहुंच गए कि भाई इनको भाभी पहुंच गई। मैंने कहा हाँ भाभी भी कल चली गई है, कहीं बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। मैं तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्या बात करनी है आपको? वो तो हमारी समझन तो आप जानते हैं, थोड़ा हीरोइन टाइप की तो ही है, एक्साइटेड है आप जानते हैं इस बात को। तो फिर मैंने कहा यस। मैंने कहा बोलिए कि अगर हम रिलेटिव हो जाए। अरे मैंने कहा मैम आपने मेरे मुँह की बात छीन ली। ये मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने मेरे मुँह बात छीन ली। ये मैंने उनसे कहा मेरे बात छीन ली। तो मैं लड़की से मैंने बात किया, मैंने कहा बेटे सेठ की मॉम का ये ऑफ़र आया, अब मैं इसको लाइक करता हूँ। तो मेरी लड़की थोड़ा डिफर है इस मामले में। उसने पापा आपको सीट पसंद है? मैंने कहा बेटे यार मैंने जो सीट पहले देखा था 2008 में और जो आज देखा 2016 में है, वो क्या लंबा टिल्टा लड़का है यार। अच्छा खासा जॉब बता रहा हो उस समय, जो जॉब है उसकी ठीक ठाक पैसा कमा रहा है और हमारे हिंदू है और ब्राह्मण है। उसने कहा पापा एक बात कहूँ? मैंने कहा यस। आपने तो उसकी मॉम ने आपसे कहा, आपने उसे क्या बोला? मैंने कहा मैं लड़की से पूछूंगा। यस वेरी गुड। अब पहले मैं उसको देखूँ, मैं उससे मिली हूँ, मैं 8 साल बाद उससे मिल रही हूँ। अब मैं उसे देखूँगी, परखूँगी क्या है, कौन है, क्या है। हो सकता है उसे कोई गर्लफ्रेंड हो, हम बीच में इंटरफेयर कर दें भाई उनको दिया। तो पहले मैं 2-3 महीने में टाइम दीजिए और तब मैं आपको रिजल्ट दूँगी। तो मैंने उसकी मॉम को फ़ोन कर दिया रुआ से मुँह से कि भाई मेरी लड़की ने ये जवाब दिया है। क्योंकि मैं रियली मैं बता रहा हूँ कि मैं चाहता था कि सिर्फ मेरा दामाद बने। अच्छा। लेकिन मेरी लड़की ने मुझे ये कह दिया कि भाई मुझे टाइम चाहिए। मैं कहूँ कि नो, मैंने पूछा उससे पहले, मैंने कहा क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? कि नो पापा अभी तक तो कोई नहीं ऐसा। तो उसे मैं 3 महीने उसका फ़ोन आया मुझे कि पापा ठीक है आपने जो कहा ठीक है। मैंने उसको देखा, वो ठीक है लड़का। तब हम जो है टीन एज थे, आज हम लोग मैच्योर हो गए हैं। मेरी लड़की का टचवुड जो है, मुझे उस पर प्राउड है। क्यों प्राउड है कि अकेली लड़की को मैंने यहाँ से न्यूजीलैंड भेजा। जब मैंने उसको एयरपोर्ट भेजा तो जब गले में उसको लगाया, मैं चिपकी मेरे पे वो, मैंने कहा रोना मत, मैं आपके ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ। आपका ड्रीम था मुझे न्यूजीलैंड जाना है, वहाँ की एजुकेशन लेनी है। आपके फादर को जो है गॉड ने इतना पावर दिया है और भेज सकता है। तो उसके मैं उसको प्राउड करता हूँ। फिर उसने उसका जो डिसीजन होगा ना, आपको उसका डिसीजन सिर्फ देखिए, मकान पूरा उसने बना रखा है। ये पूरा डेकोरेशन उसका है, चाहे जहाँ मैं बैठा हूँ वो, जहाँ आप खड़ी है वो। ये सीढ़ी मेरी 3 बार टूटी है,
ये भी, वो सीढ़ी भी, ये ग्रिल भी खिड़की के 3 बार टूटी है। ऐसे नहीं, ऐसे चिढ़ता भी हूँ, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कह रहा है ठीक है बोल रही है, बाद में देखता हूँ अच्छा हो रहा है यार, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, सो आपको सिद्धार्थ भैया और साक्षी दी में सबसे यूनिक चीज़ क्या लगती है? झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं वो बिल्कुल, दोनों के दोनों। अच्छा। हाँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हो। और अगर थोड़ा सा भी उनको दाएं बाएं दिख गया कोई झूठ बोल रहा तो उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। झूठ नहीं बोलते। और यूनिक चीज़ में एक सिंपल हैं, सोबर हैं और संस्कारी भी हैं। दोनों का काफ़ी कुछ सिमिलर है, दोनों की आदतें। हाँ, जैसे अब धीरे बोलना और शांत उसमें रहना, वातावरण में रहना, और ज़्यादा शोशेबाजी वाले भी नहीं है। इस समय जितना भी वो है वो सब श्रद्धा के एफर्ट से हो रखा है। जितना भी, अभी तो शादी तो बार बार कह रहे थे कि अंकल बिल्कुल सिंपल करो, सिंपल करो। हमें बिल्कुल नहीं है शोशेबाजी पसंद है, लेकिन अब श्रद्धा ने कहा है मेरे ड्रीम है, आपके भी हैं, तो आप ठीक है दीदी और भैया के नहीं है, लेकिन हमारे तो हैं ना। पहली बेटी की शादी हो रही तो यादगार तो होनी चाहिए, तो तब इस तरह का अरेंजमेंट घर पे किया गया कि ये शादी तो भाई एक ही बार होती है, तो फोटोग्राफी तो होनी चाहिए, तब जाके ये प्रोग्राम हुआ। जहाँ भी रहें सुखी रहें, हमारी दुआ इनके साथ रहेगी। इसी तरह दोनों आगे बढ़ते रहें, और जैसा उनका भी आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे, है ना। और ऐसे ही रहें। बहुत हमें तो बहुत उन दोनों के जो विचार हैं, हमें बहुत बात की है दोनों से, बच्चों से बहुत काफ़ी देर, मतलब बहुत बात करी है। लगा लो उनकी बातचीत जब शुरू हुई थी तो कम से कम 2 साल हो गए, 2-2.5 साल, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। हाँ, 4 साल में काफ़ी कुछ हमने उनको पहचान लिया, देख लिया। और बस ईश्वर उनको इसी तरह से सुखी रहे और अपना आगे वो जीवन बहुत अच्छे से रखें, निभाएं और खुश रहें। यही माँ बाप की कामना होती है। पेरेंट्स तो यही चाहते हैं बच्चे खुश रहें, और उनकी ये जो नई ज़िंदगी है खूब एंजॉय करें उसको, और अपने जो उनका एम है, गोल है, उसको पूरा अचीव करेंगे। इश्क वर्गे ते इश्क ही पल्ले, इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले। रूवी तेरी मैं भी तेरा, रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा। रूवी तेरी मैं भी तेरा, रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा। मेले आसां गिणे साहां दे तैथों प्यारिया, ते पीर भी तू, प्यार भी तू, दीन भी तू, ईमान भी तू, ते प्रीत भी तू, मीत भी तू, मेरा यार भी तू, करार भी तू, ते पीर भी तू, प्यार भी तू, दीन भी तू,
जीवे यार बुलंदा काशी तो काबा तो उच्चा सानू यार दिसेंदा इश्क लगनों लगी लगे जीवे यार बुलंदा काशी तो काबा तो उच्चा सानू यार दिसेंदा उच्चा सानू यार दिसेंदा the pir